السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کلاس 4 جنرل سائنس کا 7واں چیپٹر شروع کرنے والے ہیں، جس کا نام ہے ارتھ اینڈ اٹس ریسورسز، زمین اور اس کے ذرائع۔ ریسورسز کا مطلب ہوتا ہے ذرائع۔ ریسورسز وہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہم مختلف قسم کی چیزوں کو حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر زمین سے ہم مختلف قسم کی چیزوں کو حاصل کرتے ہیں۔ کراپس، فصلیں زمین سے اگتی ہیں، زمین پر ہم رہتے ہیں، زمین سے ہم مختلف قسم کی چیزوں کو حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر واٹر جو ہم پیتے ہیں، جو گراؤنڈ واٹر ہے، اسے ہم زمین سے حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح جو زمین جو ہے اس پر 71% پانی ہے، تو ان سب چیزوں کو ہم ریسورسز آف ارتھ کہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس سب سے پہلا ہے نیچرل ریسورسز، قدرتی ذرائع، یعنی وہ چیزیں جو ہمیں قدرت سے حاصل ہوتی ہیں، ہم انہیں نیچرل ریسورسز کہتے ہیں۔ یعنی ہم نے انہیں خود نہیں بنایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہے، تو انہیں ہم نیچرل ریسورسز کہتے ہیں۔ The basic materials that humans get from land, sea or air، وہ بنیادی چیزیں جو کہ انسان حاصل کرتے ہیں زمین سے، سمندر سے یا ہوا سے، انہیں ہم نیچرل ریسورسز کہتے ہیں۔ نیچرل ریسورسز جو ہیں ان کا کوئی سبسٹیٹیوٹ یعنی نعم البدل نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچرل ریسورسز جو ہیں یہ لمیٹڈ ہوتی ہیں، یعنی کہ استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ختم ہوتی ہیں، جیسے ہمارے پاس کوئلہ ہے، آئل ہے اور نیچرل گیس ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ارتھ اینڈ اٹس فزیکل کریکٹرسٹکس، دوسرا ٹاپک ہے لینڈ، زمین اور اس کی جسمانی خصوصیات، زمین اور اس کی طبی خصوصیات۔ تو زمین جو ہے، زمین پوری زمین کا ہم نے پہلے بھی ڈائیگرام بنایا تھا۔ زمین کے 3 حصے ہوتے ہیں، یعنی کہ 3 لیئرز ہوتے ہیں۔ سب سے اندر والا جو لیئر ہوتا ہے اسے ہم کور کہتے ہیں، دوسرا مینٹل ہوتا ہے، اور باہر کا جو ہوتا ہے وہ کرسٹ ہوتا ہے۔ تو یہ کرسٹ جو ہوتا ہے اس کے اوپر جو ماحول ہے، جو ہواؤں کا ایک چادر بچھا ہوا ہے زمین کے ارد گرد، اسے ہم ایئر کہتے ہیں، ایٹماسفیئر کہتے ہیں، جسے ہم کرۂ ہوائی، اردو میں ایٹماسفیئر کو کرۂ ہوائی کہتے ہیں، یعنی ہوا کا کرہ، ہوا کا حصہ۔ تو زمین پر 71% جو ہے وہ پانی ہے۔ یہ زمین کے اندر نہیں ہے، یہ زمین کے اوپر حصے پر 71% پانی ہے سمندروں کی شکل میں۔ دنیا میں 5 سمندر ہیں، بحر الکاہل، بحر اوقیانوس، بحر ہند، بحر منجمد شمالی، بحر منجمد جنوبی، پیسیفک اوشن، اٹلانٹک اوشن، انڈین اوشن، آرکٹک اوشن یا جسے ہم ناردرن اوشن بھی کہتے ہیں، اور سدرن اوشن۔ یہ ہمارے پاس 5 سمندر ہیں جو کہ مکمل طور پر پانی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خشکی پر جو خشکی کا حصہ ہے وہ 29% ہے لینڈ، اور اسے ہم کانٹیننٹس یعنی بر اعظم کہتے ہیں، بر اعظم۔ بر کا مطلب ہوتا ہے خشکی کا ٹکڑا، اعظم کا ہوتا ہے بڑا، یعنی خشکی کا بڑا ٹکڑا۔ اور یہ جو اوشنز ہوتے ہیں اسے ہم اردو میں بحر کہتے ہیں، بحر اور بر۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے زمین پر بنیادی جو زمین کی کریکٹرسٹک ہیں۔ اچھا، جو لینڈ ہوتی ہے اس پر پھر مزید پہاڑ ہوتے ہیں، کہیں پہ میدان ہوتے ہیں، کہیں پہ صحرا ہوتے ہیں۔ اسی طرح زمین پر دریا بھی بہتے ہیں، زمین پر بارشیں بھی ہوتی ہیں، تو وہاں سے دریا بنتے ہیں، پھر دریا جا کے سمندر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جیسے پاکستان میں دریائے سندھ ہیں، دریائے سندھ اوپر چین سے شروع ہوتا ہے، تبت کا علاقہ ہے، وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، پہلے انڈیا کے اندر داخل ہوتا ہے، پھر پاکستان کے اندر، اور پھر کراچی کے ساحل پہ یہ کیا ہو جاتا ہے، یہ بحیر عرب میں گر جاتا ہے، یا ہم اسے بحر ہند بھی کہتے ہیں۔ بہرحال پہلے بھی ہمارے چینل پر موجود ہے بحر اور بحیرے کے بارے میں فرق، تو آپ وہاں سے جان سکتے ہیں کہ بحر اور بحیرے کے بارے میں کیا فرق ہے۔ اس کے بعد ہے ڈسٹریبیوشن آف واٹر آن ارتھ سرفیس۔ اب زمین پر پانی تو 71% ہے، یہ 71% پانی کو اگر ہم 100% لیں تو یہ پھر مزید کس طرح ڈیوائیڈڈ ہے، کس طرح حصوں میں منقسم ہے۔ تو سب سے پہلے 97% جو واٹر ہیں وہ تو سمندروں ہی میں ہیں۔ اگر واٹر کے 71% حصے کا ہم 100% بنا لیں، یعنی ہم صرف واٹر کی بات کر رہے ہیں،
तो 100 में 97% हिस्सा समंदरों पर मुश्तमिल है, बकाया 3% हिस्सा ग्लेशियर्स जो बर्फ के पहाड़ होते हैं, लेक्स जो होती हैं और रिवर्स दरियाए जो होती हैं, इन पर मुश्तमिल हैं। अच्छा, पानी हमारे पास दो किस्म का होता है, एक को हम कहते हैं मेरीन वाटर या मेराइन वाटर, जिसे हम दूसरे ज़बान में साल्टी वाटर भी कहते हैं, और एक होता है फ्रेश वाटर। मेराइन वाटर जो होता है या मेरीन वाटर जो होता है, ये ओशंस का जो पानी होता है, जो 97% हिस्सा है ये मेरीन वाटर है, साल्टी वाटर है, जबकि ये 3% हिस्सा जो है ये ग्लेशियर, लेक, रिवर्स, ये हमारे पास फ्रेश वाटर हैं। अब इस फ्रेश वाटर में हमारे पास ग्राउंड वाटर भी आता है जो ज़मीन के नीचे है, जिसे हम पीते हैं तो वो पीने के काबिल भी हैं। इसके बाद हमारे पास हैं अर्थ रिसोर्सेज, यानी कि ज़मीन के ज़राए, ज़मीन से हमें कौन कौन सी चीज़ें हासिल होती हैं। ज़मीन से हमें पानी, ऑयल, सॉइल, फॉरेस्ट, कोल, नेचुरल गैस, मिनरल्स, ये सब चीज़ें हमें ज़मीन से हासिल होती हैं। हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले हम क्ले की बात करते हैं। ये सॉइल जो है इसकी मज़ीद किस्में हैं, सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, इसी तरह मज़ीद अक़साम भी हैं। तो इनसे हम ब्रिक्स और पॉटरी, बर्तन वगैरह बनाते हैं, इसी तरह ईंटें वगैरह बनाते हैं। सैंड जो है इसे हम बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, ग्लास, शीशा भी जो है ये सैंड यानी रेत से बनता है। इसी के साथ साथ पेंसिल जो है ये हम ट्री जो वुड होता है वो ट्री से लेते हैं, और उसके अंदर जो लिखने की चीज़ होती है वो ग्रेफाइट से बनी होती है, और ग्रेफाइट हमारे पास जो है कार्बन से बनी होती है, जो कि हमारे पास कार्बन जो एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में और उसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो ग्रेफाइट जो है ये कार्बन से बना होता है। इसी के साथ साथ रबर जो है, रबर हमारे पास रबर प्लांट होता है, वहाँ से सिक्रीट होता है, या हम इसे एक्सक्रीट भी कह सकते हैं। सिक्रीशन और एक्सक्रीशन बहरहाल ये बियोलॉजी का टॉपिक है, आप वहाँ पे उसे सीख सकते हैं। इसके बाद हैं वाटर, यानी इन नेचुरल रिसोर्सेज में हम पहले वाटर की बात करते हैं। वाटर जो है ये ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग, वॉशिंग, इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, हर चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। रनिंग वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है, इससे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह थर्मल पावर स्टेशन जो खासकर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है। इसी तरह हैबिटेट, यानी ये ओशन जो समंदर होते हैं या दरिया वगैरह होते हैं, वहाँ पे ये मुख्तलिफ जानवरों का मस्कन होती हैं, यानी पानी में जानवर रहते हैं, जिसे हम एक्वेटिक एनिमल्स या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। पहले भी हमने पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं उसे हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और जो खुश्की में रहते हैं उसे हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ये बुनियादी टॉपिक है अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा कि ज़मीन क्या है। सबसे पहले ज़मीन जो है एक प्लेनेट है जो कि सूरज के गिर्द घूम रही है। ये हमारे पास सूरज है, और सूरज के गिर्द इस लाइन में सियारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, जिसमें हमारा एक अर्थ है, और इस पूरे सिस्टम को हम निज़ाम शमसी कहते हैं। अर्थ हमारे पास तीसरा सियारा है, जो ज़मीन जो के सूरज के गिर्द घूम रहा है, और अर्थ वाहिद सियारा है जिस पर ज़िंदगी आबाद है, और ज़िंदगी आबाद होने के लिए पानी का होना ज़रूरी है, और ज़मीन पर चूँकि पानी मौजूद है इसी वजह से यहाँ पे ज़िंदगी पॉसिबल है, ज़िंदगी मुमकिन है। वाटर के बाद हम एयर को डिस्कस करते हैं। हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी पार्टिकल्स हैं, इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा एयर के पार्टिकल्स हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास जो एवापोरेशन वाटर से होती है वो पार्टिकल्स हैं, और साथ साथ में डस्ट पार्टिकल्स यानी गर्द के ज़र्रात भी हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं। तो एयर हमारे पास जो है ये कलेक्शन ऑफ गैसेज हैं, गैसों का मजमूआ है। एयर हमारे पास सॉइल और वाटर में भी मौजूद होती हैं, क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के नीचे रहते हैं और वो ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं उनको भी हवा लेने की, सांस लेने की ज़रूरत होती है। अमूमन हम क्या लेते हैं, रिस्पायरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो एयर जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर में भी मौजूद है, सॉइल की मिट्टी के अंदर भी मौजूद है, और वाटर के अंदर भी मौजूद है। इसके बाद एयर का जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन, यानी किससे एयर किन चीज़ों से बनी है, तो सबसे ज़्यादा 78% हवा में नाइट्रोजन गैस है,
21% ऑक्सीजन गैस हैं, और इसी के साथ 0.03% कार्बन गैस हैं, और आर्गन 0.1% आर्गन, और इसी तरह डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, और साथ में वाटर वेपर्स हैं वो भी हवा में मौजूद हैं। अभी ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन हमारे लिए एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है। रिस्पायरेशन के बारे में हमने बात की थी कि ये ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हम खुराक को इस्तेमाल करते हैं और उस खुराक से हम एनर्जी हासिल करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर रिस्पायरेशन होती है और इसके नतीजे में हम एनर्जी हासिल करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो रिस्पायरेशन दो किस्म की होती है, एक एरोबिक रिस्पायरेशन, एक एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन होती है जिसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, AEROBIC एरोबिक रिस्पायरेशन। और एनाएरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन होती है जो कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है। ये मज़ीद बायोलॉजी का टॉपिक है, आगे हायर क्लासेस में हम पढ़ते हैं इसको। इसके बाद हम सॉइल की बात करते हैं, मिट्टी की बात करते हैं। मिट्टी में हमारे पास वाटर भी होता है, ग्रेवल भी होता है, फर्टाइल मैटर भी होता है, एयर हवा भी होती है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि सॉइल के अंदर भी हवा मौजूद होती है। न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स, सॉइल जो है ये प्रोवाइड करती है, मुहैया करती है प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स। सॉइल जो है ये ज़मीन को न्यूट्रिएंट्स यानी पौधों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं। जितने भी पौधे हैं वो न्यूट्रिएंट्स अपनी खुराक जो है वो नीचे ज़मीन से लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स से मुराद हमारे पास वो चीज़ें हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं। हम मिसाल लेते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की हमने बात की कि ये गैस है और एयर है, और एयर सॉइल के अंदर भी मौजूद होती है। तो नाइट्रोजन जो है ये प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। इसी तरह ज़मीन से मिनरल, ज़मीन में मादनियात होती हैं हमारे पास, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटाशियम है। इसी तरह मज़ीद जितने मिनरल्स हैं वो हमें ज़मीन से हासिल होती हैं। पहले प्लांट्स इन मिनरल को लेते हैं और फिर प्लांट को हम खाकर वो मिनरल हम अपनी खुराक के लिए हासिल करते हैं। जिस तरह हमने पहले चैप्टर में बात की थी कि बोन्स जो होती हैं उनके लिए कैल्शियम और फास्फोरस की ज़रूरत होती है। कैल्शियम फास्फेट के ज़रिए बोन और टीथ जो है वो मजबूत होती हैं। तो ये दोनों क्या हैं, ये मिनरल्स हैं, और मिनरल्स हमें ज़मीन से हासिल होती हैं। इसी के साथ साथ ये शेल्टर है ऑर्गेनिजम्स के लिए, यानी ऑर्गेनिज्म जानदार जो है वो साइल पर रहते हैं, उनके लिए ये पनाहगाह है। शेल्टर का मतलब है पनाहगाह। इसी के साथ साथ हम साइल से ब्रिक्स बनाते हैं, ग्लास बनाते हैं, शीशा, इसी तरह यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह हम साइल से बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो है ये भी एक नेचुरल सोर्स है, कुदरती ज़रिया है। साइल जो है, फॉरेस्ट जो है ये कम्प्लीटली कवर्ड विथ ट्रीज, कम्प्लीटली कवर्ड एरिया, यानी कि वो इलाका जहाँ पे मुकम्मल तौर पर ज़मीन की ऊपर सतह पर पौधे लगे हुए हो, तो उसे हम फॉरेस्ट यानी जंगल कहते हैं। ये टिम्बर प्रोवाइड करती हैं। तो टिम्बर का मतलब है इमारती लकड़ी, और साथ साथ में ये नेचुरल हैबिटेट हैं, यानी कि कुदरती मस्कन है मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिजम्स का। मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार जंगलों में रहते हैं जिन्हें हम जंगली हयात कहते हैं, वाइल्ड लाइफ। तो ये पनाहगाह है मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों के लिए। ये हमें इमारत के लिए लकड़ी प्रोवाइड करती है। ये हमें हमारी हवा को ऑक्सीजनेट करती हैं, यानी कि ऑक्सीजन खारिज करती हैं, जो कि हमारी रिस्पायरेशन के लिए ज़रूरी होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए। इसी के साथ साथ पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान में टोटल जो रकबा है, पाकिस्तान के टोटल रकबे का 5.2% जो है वो फॉरेस्ट पर मुश्तमिल है, जो कि बहुत ही कम है। कम अज़ कम 20% तक तो ज़रूर होना चाहिए एक क्लीन और ग्रीन मुल्क के लिए। जो मुल्क क्लीन और ग्रीन होना चाहता है उसके लिए कम अज़ कम मेरे ख्याल में 20% तो होना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। ऑक्सीजन जो है ये बुनियादी सोर्स हैं। वाटर के बाद दूसरा जो हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है वो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन हमें प्लांट से हासिल होती है।
इसी के साथ साथ हमारे पास ये नेचुरल फॉरेस्ट हैं जो कि ज़ियारत बलूचिस्तान में वाक़िया है। इसी के साथ साथ आर्टिफिशियल फॉरेस्ट भी हैं जो कि लाहौर के करीब चांगा मांगा फॉरेस्ट है, वो आर्टिफिशियल है, यानी मैन मेड है, इंसान ने उसे बनाया हुआ है, पौधों को लगाया है और एक पूरा जंगल बन गया है अभी। इसके बाद हमारे पास नेचुरल सोर्स हैं, नेचुरल ऑयल, कुदरती तेल जो कि ज़मीन से हासिल होती हैं। ज़मीन से जो कुदरती तेल हासिल होती हैं वो क्रूड ऑयल होती हैं, यानी कि उनके अंदर मिट्टी रेत सब कुछ शामिल होता है। फिर उनको हम रिफाइनरीज में ले जाते हैं और रिफाइनरी क्या करती हैं, उस तेल को साफ़ करती हैं, क्रूड ऑयल को साफ़ करती हैं और फिर उससे मज़ीद ये अंडरग्राउंड होता है, यूज एज फ्यूल, हम उसे फ्यूल के तौर पर, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में भी मदद देता है। ये जब हम इसे रिफाइनरी में साफ़ करते हैं तो इसे केरोसिन ऑयल बनता है। इसी तरह पेट्रोल, डीजल, इंजन ऑयल, ग्रीस, पेट्रोलियम गैली वगैरह ये सब हमारे पास क्रूड ऑयल से बनती हैं जब हम इसे मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारते हैं रिफाइनरी में। इसके बाद हमारे पास नेचुरल सोर्स हैं गैस, नेचुरल गैस। पाकिस्तान में ये गैस जो है सुई के मकाम पर जो कि बलूचिस्तान में वाक़िया है, वहाँ पे ये गैस निकलता है, हम उन्हें ज़मीन से निकालते हैं, तो इसी वजह से इस गैस को हम सुई नादरन गैस कहते हैं, यानी सुई के मकाम पर ये वाक़िया है। नादरन का मतलब नार्थ, शुमाल। ये जो है हीटिंग के पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह ये मुख्तलिफ चीज़ों को हीटिंग के ज़रिए हम पकाते हैं, घरों में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली भी पैदा करता है। यूज टू मेक फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स बनाने में भी इस्तेमाल होता है जो नेचुरल गैस है। तो हमारे पास ये सब जो है नेचुरल सोर्सेज हैं जो कि हमारे पास ज़मीन से हासिल होती हैं। इसके बाद है सेकेंड लार्जेस्ट माइन ऑफ नेचुरल साल्ट। ये एक इंफॉर्मेशन है, किताब में लिखा हुआ है कि दुनिया में, पूरी दुनिया में जो नेचुरल साल्ट का, कुदरती नमक जो है, उसका जो सबसे बड़ा माइन है, दूसरा बड़ा माइन दुनिया में सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पर जो बड़ा माइन है, जो पहाड़ है, आप इसे पहाड़ भी कह सकते हैं, वो केवड़ा में वाक़िया है। केवड़ा एक जगह का नाम है और केवड़ा जो है ये पिंडाडन खान या पिंडादन खान में पंजाब में वाक़िया है, यानी कि दुनिया का दूसरा बड़ा नमक का जो माइन है वो पाकिस्तान में वाक़िया है। जज़ाकल्लाह।